ये क्या ऐसे करेंगे? टू फाइंड द डिस्टेंस वी हैव गॉट 4 meters. 8 meters, राइट? ये 2 और 2 पावर कटा तो ये बन गया 8 meters. Is there any other way by which we can solve this question? Okay, we can use equation of motion. कैसे यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन? इनिशियल वेलोसिटी 0 है. चलो अगर हम v निकाल लेंगे एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स तो वो फाइनल वेलोसिटी होगा, दैट विल बी 8 मीटर पर सेकेंड. एक्सीलरेशन कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, सो वी विल यूज 2as इक्वल्स v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. सो वी विल गेट 8s इज इक्वल टू 64. तो s मिल गया 8 मीटर्स. ऐसे भी हम कर सकते हैं, right? So I hope it is clear to everyone. Let's move to another question. Okay, let us do this one. Sampada, second equation you can use that as well, क्योंकि हमारे पास टाइम भी है, u भी है और एक्सीलरेशन भी है. Let's do this one. So displacement of a body along x-axis depends on time. Root x is equal to t plus 1. How does the velocity of the body vary with time? So to find v, first we can write the expression of x, that will be, let's square both sides, we'll get t square plus 2t plus 1. Now we have to find velocity, so we will differentiate this equation. So we get 2t plus 2. So question is, how does the velocity of body vary with time? So we can say velocity of the body varies linearly with time, because it is depending on time as a linear power. So we can say velocity is linearly dependent on time. Okay, we'll be moving towards quite difficult questions, but first we are just going through smaller and simple questions.
So how do we get to know its average or instantaneous velocity? अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली किसी पॉइंट पे पूछा जाएगा, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे पूछा जाएगा, तो हमें पता जाएगा कि वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, बिकॉज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मींस वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो इस क्वेश्चन में मुझे कैसे पता चला कि मुझे ये डिफरेंशिएशन यूज करके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करना है? बिकॉज हियर I am free to use the concept of instantaneous or average. But what we have discussed, which one gives us more accurate result about the speed of an object, that is instantaneous velocity. तो मैंने instantaneous velocity को prefer किया. So if, in other words, we can say, if I wanted to check how the velocity varies with time, so I considered at time t. तो एट टाइम टी पे मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बेटर रिजल्ट देगा या एवरेज वेलोसिटी? ऑफ कोर्स द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एंड दैट्स द रीजन आई हैव कंसीडर्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. Okay, another question, let's do. Everyone will try this. These are the smaller simple questions, of course, present in the modules. So right from the start, from the basics, we'll go towards the advanced one. You have to find the average velocity between time 0 to 4 seconds. So it says a particle moving in accordance with the equation x is equal to 5t square minus 20t plus 4. So you have to find the average velocity. But यहाँ पर मुझे velocity 4 seconds पे पता नहीं है. So what I will do, I can find out this point by using differentiation because I have to find the velocity at 4 seconds. तो v अगर निकालूंगा डिफरेंशिएट करके तो मुझे मिलेगा 10t minus 20. Now when t is equal to 4, तो v कितना होगा? 20. So this point is 20. So if we want to find out average velocity, ये होता क्या है? Displacement by total time taken. तो time taken तो है हमारे पास 4, but total displacement हमें 0 आ जाएगा because this graph we can use the area. We learned that from the graph we have only two things to use. तो उसमें area use करेंगे तो हमें ये दोनों area equal मिलेगा. So to find displacement, we take the areas with respect to signs and then add them. अगर टोटल, अगर ये क्वेश्चन रहता एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या होता? हम इन दोनों एरिया को ऐड करते, तो ये एरिया कितना हो गया? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हो गया 20. ये भी एरिया कितना होगा? 20 डिवाइडेड बाय 4, सो दैट विल बी 80 by 4 and that is 20 मीटर पर सेकेंड. तो एवरेज वेलोसिटी 0 आता, बट एवरेज स्पीड अगर हम निकालते तो वो आएगा 20 मीटर पर सेकेंड.
Okay, so in t is equal to 0 to 2 seconds, particle was going in a negative direction. 2 to 4 seconds में particle positive direction में जा रहा है और equal velocity gain कर रहा है. So that means displacement is of course 0. Okay, this should be clear to everyone as well. Okay, some more graphical questions we will do. Let us suppose मैं एक random graph अगर draw करूं to check the acceleration. So this is velocity time graph. अब मैं ये graph थोड़ा curved बना दिया because it is possible to have a curved variation. So if I want to check at this time t at time t1 between 0 to t1 and between t1 to t किस पॉइंट पे बॉडी एक्सीलरेट कर रहा है, किस पॉइंट पे क्या हो रहा है, यू हैव टू डिटरमाइन. So number one, uniform velocity. Number two, acceleration. Number two, deceleration. Let's check, Snigdho. So you say number one is uniform velocity. Number two, accelerate. So acceleration. Number two, deceleration. So let's check this. 0 से t1 टाइम तक पहले देखते हैं. In time 0 to t1. So what we know, किसी कर्व पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो the tangent at that point, right? So let us consider any two time. Let us say मैंने ये टाइम कंसिडर कर लिया और थोड़े टाइम के बाद भी मैंने कंसिडर कर लिया, बट वो टाइम 0 से t1 के बीच में है. So we can see as the object goes from 0 to t1, as the time passes, the slope is decreasing, है ना? ये स्लोप ज्यादा है और जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो स्लोप हमारा कम हो गया. सो 0 टू t1 में क्या हो गया? स्लोप डिक्रीजेस. स्लोप डिक्रीज हो रहा है मतलब कि एक्सीलरेशन डिक्रीज हो रहा है. सो यू हैव टू स्पेसिफाई दैट एक्सीलरेशन इज डिक्रीजिंग. यहां पे कांस्टेंट एक्सीलरेशन नहीं है. एक्सीलरेशन इज वेरिएबल इन दिस केस.
है ना, बिकॉज स्लोप इटसेल्फ इज रिप्रेजेंटिंग एक्सीलरेशन। अब एट t1 क्या हुआ? एट t1 देखो तो एक्सीलरेशन 0 है, मतलब ऑब्जेक्ट विल मूव with uniform velocity. Now this is correct. Object will move with uniform velocity. Between t1 and t यहां पर क्या होगा? तो फिर से कोई भी दो टाइम लेंगे, एक टाइम यहां पर पहले ले लिया हमने और दूसरा टाइम यहां पर ले लिया। सो व्हाट वी विल सी दैट द स्लोप क्या हो रहा है, फिर से इंक्रीज हो रहा है, राइट? बट अब जो स्लोप इंक्रीज हो रहा है वो नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। बट इफ वी टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन, this will increase in this case, right? So slope increases. Is this clear? What happens with acceleration? It is not constant in this case. Acceleration is variable. So this is a case of non-uniform motion. थर्ड वन, बिटवीन t1 और t टाइम पे अगर हम देखेंगे तो स्लोप क्या हो रहा है? ये देखो स्लोप यहां पर डिक्रीज हो रहा है, बट वो डिक्रीज नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है। मतलब ओवरऑल अगर मैग्नीट्यूड देखें स्लोप का तो वो इंक्रीज हो रहा है। जस्ट यू कैन फिगर आउट विथ रेस्पेक्ट टू, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं एंगल के रेस्पेक्ट में। ये क्या कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लेट अस सपोज 120 डिग्री बना रहा है, और ये लेट अस सपोज 150 डिग्री बना रहा है। तो फर्स्ट केस में स्लोप क्या होगा, tan 150, और tan 150 क्या होता है, नेगेटिव, बिकॉज ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। सो दैट इज माइनस tan 30 माइनस 1/√3। इस पॉइंट पे स्लोप क्या होगा, tan 120 मीन्स tan माइनस tan 60, दैट इज -√3। तो अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, राइट? ये -1/√3, ये -√3, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1/√3, और इसका मैग्नीट्यूड √3। तो अगर एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड देखें तो दैट इज इंक्रीजिंग बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इज इंक्रीजिंग, राइट? ओके, सो आई विल गिव यू सिमिलर क्वेश्चंस। अब इसमें क्या किया मैंने, पोजीशन टाइम ग्राफ बना दिया, सेम ग्राफ को मैंने पोजीशन टाइम ग्राफ बना दिया। एंड नाउ यू हैव टू टेल, ये टाइम ले लिया 0, ये पीक पॉइंट पे टाइम ले लिया t1, और ये टाइम ले लिया t2। सो यू हैव टू टेल 0 टू t1, 0 टू t1 और t1 टू t2 में एक्सीलरेशन अब क्या हो रहा है। So in first case, I get the answer deceleration, second case में acceleration. Let us check. So फिर से वही स्ट्रेटेजी लगाएंगे। At this first time and at the second time, यहाँ पर क्या हो रहा है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि the slope is representing velocity, right? So in 0 to t1 यहाँ पर क्या हो रहा है, slope is decreasing and slope is representing velocity, so velocity is decreasing, velocity decrease हो रहा है मतलब acceleration negative होगा, that means it will be deceleration। in time t1 to t2 फिर से यहाँ पर क्या हो रहा है, the slope is increasing, right? Slope is increasing in this case, but magnitude of slope is increasing। तो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इंक्रीज हो रहा है मतलब कि
velocity is increasing but in opposite direction. So that means this is the case of acceleration. Just in terms of speed you can get the result, क्योंकि this magnitude of slope is representing the speed. Right? This is clear to everyone. So based on this, we have two types of motion. Let us write the two types of motion. One, we have uniform motion, and another we have non-uniform motion. So as the name suggests, uniform motion means object will be covering equal distance in equal interval of time. मतलब कि अगर पहले 2 सेकंड में वो 5 मीटर गया तो नेक्स्ट 2 सेकंड्स में भी वो 5 मीटर जाएगा, फिर 2 सेकंड्स में 5 मीटर ही जाएगा और ऐसे ही ये चलता जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसमें डिस्टेंस और टाइम कभी इक्वल कवर नहीं होंगे। जैसे कि पहले 2 सेकंड में ये 5 मीटर चल गया, नेक्स्ट 2 सेकंड्स में ये 10 मीटर चल गया, फिर नेक्स्ट 2 सेकंड्स में ये 4 मीटर चल गया। So you can see this is not a kind of uniformity that we are getting. So this is the case of non-uniform motion. अच्छा, तो मैं क्या कह सकता हूं कि यूनिफॉर्म मोशन में एक्सीलरेशन जो होगा वो कांस्टेंट होगा। क्या ये जरूरी है कि एक्सीलरेशन विल बी कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म मोशन? यस, दिस इज नेसेसरी, क्योंकि अगर एक्सीलरेशन टाइम पे डिपेंड करेगा, अगर एक्सीलरेशन टाइम पे डिपेंड किया, means that object's speed will be altered, है ना? So नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन या नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब कि वेरिएबल एक्सीलरेशन will definitely be the case of नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कांस्टेंट एक्सीलरेशन का मतलब क्या हो गया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया या -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। एक्सीलरेशन हो या डिसीलरेशन, द थिंग इज इट शुड बी हैविंग अ कांस्टेंट वैल्यू, या इवन 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। वेरिएबल मतलब अगर एक्सीलरेशन लेट से 40 कहीं दिया हुआ है, मतलब कि 0 टाइम पे क्या है एक्सीलरेशन? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 सेकंड पे क्या हो गया ये? 0 पे 0 है। 1 सेकंड पे क्या हो गया? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 सेकंड पे क्या हो गया? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है मतलब कि उसका स्पीड इस रेंज में, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। मतलब यहाँ पर जो चेंज था दैट इज डिफरेंट इन दिस रेंज। So it will be non-uniform motion. So you can remember these cases. Okay Sampada, I can understand. You said यहाँ पर टाइम भी बदलेगा तो क्या नॉन यूनिफॉर्म होगा? यस, यहाँ पर क्या किया, मैंने टाइम को कांस्टेंट कर दिया और उस 2-2 सेकंड पे मैंने डिस्टेंस निकाला। सो नाउ लेट अस सी कि ऑब्जेक्ट 5-5 मीटर में कितना टाइम लेता है। तो डेफिनेटली अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो टाइम अलग-अलग लेगा। हो सकता है इसमें 2 सेकंड ले, हो सकता है ये 1 ही सेकंड में चला जाए, हो सकता है ये 3 सेकंड में जाए। तो अभी या तो डिस्टेंस कांस्टेंट कर दें और टाइम देखें, या तो टाइम कांस्टेंट कर दें और डिस्टेंस देखें, बात बराबर है। बट वी विल नॉट गेट इक्वल रेशियो, या फिर वी विल नॉट गेट इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। So that's why you will find the definition of non-uniform motion as the body covering unequal distance in equal time and vice versa. रेशियो इक्वल कैसे होगा नॉन यूनिफॉर्म में क्रिश? 5 बाई, हाँ ठीक है, 5/2 या फिर 10/4, मतलब 4 सेकंड में अब ये 10 मीटर गया। हमें क्या करना है, ये भी तो देखना है ना। अगर रेशियो
को ध्यान में रखना है, तो दोनों में से किसी एक को तो सेम रखना होगा ना, फिर रेशियो देखना होगा। Okay, so these were the two types of motion. Let's again move with another question. Let's do this one. You all can tell me which option should be the correct one. D. Let us see. On displacement time graphs, two straight line makes angle 60 and 30 with time axis. The ratio of the velocities. तो इसका वेलोसिटी क्या होगा? tan 60. इसका वेलोसिटी क्या होगा? tan 150, right? We always take the angle with respect to the positive direction. तो ये मिल गया हमें √3 और ये मिल गया -tan 30, मतलब कि -1/√3। अब प्लस और माइनस तो यहाँ है नहीं ऑप्शन में, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा है रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज, तो प्लस और माइनस में होना चाहिए, बिकॉज वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना? सो नाउ यू कैन इजीली फाइंड द रेशियो, √3 डिवाइडेड बाय 1/√3, तो ये हो जाएगा 3:1, है ना? अच्छा, 1:3 मैंने इसको और इसको इससे क्यों नहीं डिवाइड कर दिया, ऐसे क्यों नहीं कर दिया, 1/√3 डिवाइडेड बाय √3, तो ये 1:3 ये क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो भी तो ऑप्शन में है। डी विल बी द करेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन में पहले पूछा गया है टू स्ट्रेट लाइन्स मेकिंग एंगल, पहले 60 डिग्री के बारे में बोला गया है, फिर 30 डिग्री के बारे में। तो अगर कोई ऑर्डर नहीं दिया गया है, सो वी विल कंसिडर द मोस्ट जनरल ऑर्डर, है ना? तो मतलब कि इसका पहला वेलोसिटी ले लेंगे, इसका दूसरा वेलोसिटी ले लेंगे और डिवाइड। ओके, गॉट इट एवरीवन? Okay, another question. Let me know which one is most correct here. So among the four graphs, there is only one graph for which average velocity over time interval 0 to t can vanish for a suitably chosen time t. Which one is it?
A and D I can see for most of the students. चेक इट केयरफुली, ए होगा या फिर डी होगा. इफ यू लुक एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, क्या होता है एवरेज वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन. So you need to identify that graph which is having same displacement for two timings. मतलब किसी time interval 0 to t, you have to check that graph for which average velocity will vanish. अच्छा, एक B भी आंसर मिला. So I can see for most of them getting A and D, और एक B मिला. Yes, we will revise the basic concepts, no problem. Sai Lohit. बट इसको थोड़ा ध्यान से करना है. दिस इज अ गुड वन. What does this mean, Samat? For same x 2t, so you can see for every graph there are some displacements with respect to time. तो अगर एवरेज वेलोसिटी को वैनिश करना है मतलब कि इट शुड बिकम जीरो. So correct option will be B. Because if you look at the question, it says there is one graph for which average velocity will vanish. मतलब कि डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो होगा तभी ये वैनिश करेगा. अब डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा? जबकि ऑब्जेक्ट लेट अस सपोज पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा हो और फिर नेगेटिव डायरेक्शन में आ गया हो. एटलीस्ट ये पॉसिबिलिटी अगर है, देन ओनली डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो. सो इफ यू लुक एट ईदर ऑफ द ग्राफ्स, पहले तो डी अगर देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पोजीशन इंक्रीज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. तो यहाँ पे ये वापस जाने का तो कोई केस ही नहीं बनता है. सो देयर इज नो केस इन डी व्हेन डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो. सी में देखते हैं तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? पोजीशन डिक्रीज हो रहा है, राइट? इस टाइम पे देखो तो पोजीशन ये है, फिर थोड़े और टाइम के बाद देखो तो पोजीशन ये है. मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पोजीशन इज डिक्रीजिंग. मतलब कि ये नेगेटिव डायरेक्शन में ही चले जा रहा है. ए को अगर देखें तो यहाँ पर भी देखो, ये बात अलग है कि पोजीशन लेट अस सपोज -5 मीटर पे स्टार्ट हुआ. तो अब जब टाइम बढ़ रहा है तो देखो पोजीशन बढ़ रहा है हमारा. हर टाइम पे यू कैन सी द पोजीशन इज इंक्रीजिंग. अच्छा, इस पॉइंट के बाद देख सकते हैं कि पोजीशन भले ही डिक्रीज हो रहा है और फिर इंक्रीज हो रहा है.
So कुछ हद तक this will not be right fit as per the given information. But B को अगर हम देखें तो पहले क्या हो रहा है, यहां से इस टी डैश टाइम तक जाने में पोजीशन इंक्रीज हो रहा है, राइट? ये देखो पोजीशन इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है। टी डैश फ्रॉम टी डैश टू टी तक जाने में क्या हो रहा है, पोजीशन फिर से डिक्रीज हो रहा है, मतलब द ऑब्जेक्ट इज मूविंग बैक। सो इन दिस केस देयर इज पॉसिबिलिटी फॉर डिस्प्लेसमेंट टू बी जीरो, और अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। सो एवरेज वेलोसिटी विल बी वैनिशिंग इन दिस केस बी। ये समझ में आया? बी, ए, सी और डी क्यों नहीं होगा? ओके, राइट। So before heading on to the question, Sai Lohit, let me know what doubt you have, क्या रिवाइज करना है? या तो ऐसा करते हैं, एट द एंड लास्ट 5 minutes वी विल फोकस ऑन रिवाइजिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। जो पहले क्लासेस में एब्सेंट थे दे ऑल कैन स्टे बैक, एंड आफ्टर द क्लास एंड्स वी विल अगेन रिवाइज देम फॉर अ व्हाइल। ओके, नाउ लेट अस गो विद अनदर क्वेश्चन। फिर से ग्राफिकल बेस्ड ही करेंगे। ओके, दिस क्वेश्चन वी कैन डू। Ananya, check with the option. Okay, yes, that's right. Most of you say it is C at point E. Yes, Vivek, what question you have? E point पे velocity क्या होगी, नेगेटिव होगी। हाउ डू वी डिटरमाइन दैट? बाय टेकिंग द स्लोप एट दैट पॉइंट, है ना? यहाँ पर स्लोप लेंगे तो ये स्लोप कैसा बन गया, कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के रेस्पेक्ट पे। यू हैव टू जस्ट थिंक इन टर्म्स ऑफ एंगल। अगर कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है और वो एंगल लेस देन 90 है, देन स्लोप इज पॉजिटिव। और अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस इनफैक्ट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है एंड दैट इज ग्रेटर देन 90, तो क्या होगा, स्लोप नेगेटिव होगा। और डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप ही तो वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। गॉट इट एवरीवन? Okay, next question we will do number 8. A graph of x versus t is shown in the figure. Choose correct alternatives from below. At t equal to 0, the particle, was it at rest?
तो ये जो ग्राफ है ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है. So number A, let us see. The particle was released from rest at t equal to 0. तो t equal to 0, पहले तो ये ग्राफ discontinuous है. So there is little bit misinformation. We cannot tell about case A. So ये ग्राफ generally correct form में ऐसे है. Let me draw. इसको हम बस बैक ट्रैक करते हैं, मतलब कैसा नेचर हो सकता है ऐसा. तो t equal to 0 अब तो क्लियर है ना. अब इसकी वेलोसिटी 0 नहीं है इनिशियली, बिकॉज इफ यू सी द स्लोप इट इज नॉट 0. तो ए हमारा नहीं होगा. और वही अगर कंटिन्यूअस कर्व अगर ऐसे रहा था, ऐसे रहता, तब हम भले ही कह सकते थे कि इनिशियली इसका ये 0 है ना. अगर आंसर्स में ए अगर दिया हुआ है तो वो गलत है, क्योंकि दिस क्वेश्चन इटसेल्फ इज नॉट कंप्लीट. यहाँ पे ये ग्राफ नहीं दिया है. अगर नहीं दिया है तो हम क्या करते हैं, उसको बैक ट्रैक करते हैं, मतलब जैसा नेचर है उसको कंटिन्यू करते हैं. तो उस केस में ए नहीं होगा हमारा. लेट अस चेक एट सी. It says at C, let's say this is the point C, the velocity vanishes. So we will see this probability later on. पहले C, the speed at D exceeds than that at E. तो D पॉइंट पे let us suppose ये D पॉइंट है और ये E पॉइंट दिया हुआ है. तो D पे जो स्पीड होगा, we are talking about speed, मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप लेंगे. तो D और E में अगर देखें तो स्लोप किसकी ज्यादा है. At D the slope is greater. I am talking about the magnitude of slope, है ना, because magnitude of slope for velocity for displacement time graph will represent speed. So speed at D exceeds that at E. This should be right. C correct होना चाहिए. Okay. Now let's check for B. It says at C the velocity vanishes. तो इससे पहले हमें देखना होगा C पॉइंट के पहले. तो C पॉइंट के पहले लेट अस सपोज इस पॉइंट से इस पॉइंट देखते हैं. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पोजीशन डिक्रीज हुआ, मतलब डिक्रीज इन द सेंस पीछे गया नेगेटिव डायरेक्शन में, फिर उतना ही पॉजिटिव डायरेक्शन में आया. अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को देखते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, मतलब सिमेट्रिकल पॉइंट में. तो ये क्या हो गया, यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ. अब यहाँ से यहाँ तक अगर देखते हैं, अगर ये पॉइंट सी गिवन है तो बी तो हमारा होगा नहीं, राइट, क्योंकि यहाँ पे जितने जितने नीचे आया, मतलब जितना लेफ्ट डायरेक्शन में आया उतना तो राइट डायरेक्शन में नहीं जा पाया. मतलब एट सी वेलोसिटी डेफिनेटली वोंट वेरी. अब ये जो है थोड़ा सा इसमें प्रिंटिंग कम है, तो मैं किस पॉइंट के बेसिस पे बताया, इस पॉइंट के बेसिस पे, राइट. सो सी विल बी द राइट फिट हियर. स्पीड एट डी exceeds than that at A. Is this clear? ये सबको समझ में आया. कैसे निकाला हमने स्पीड, स्लोप निकाला, देखा कि स्लोप किस पॉइंट पे ज्यादा है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ही तो स्पीड होता है. यस संपदा, सेकंड में हमने क्या किया, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं. सेकंड वाले में क्या देखना है, एट सी क्वेश्चन स्पेसिफिकली आस्क्स एट सी द वेलोसिटी वैनिशेस. तो हमने पॉइंट ये सी ले लिया. यस समर्थ, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉइंट. मैंने ये पॉइंट ले लिया सी को, है ना, इस पॉइंट को लिया. इस पॉइंट पे स्लोप तो 0 नहीं है, थोड़ा सा ये है, इसलिए यहाँ पे ये पॉइंट शुड बी क्लियरली मेंशन. हाँ, अगर सी ये रहता तो हम वो भी कह सकते हैं अगर स्लोप 0 है तो हमारा वेलोसिटी वैनिश हो रहा है, राइट. बट अगर देखोगे
तो हमने सी ये वाला लिया क्योंकि यहाँ पे सी दिया हुआ है तो लगभग ये हमारा सी है। तो थोड़ा इसको स्पेसिफिकली देखेंगे तो दिस इज़ लिटिल बिट कर्व्ड अप, मतलब थोड़ा-सा वहाँ पर वेलोसिटी है। इट्स नॉट 0, है ना? बट दिस सी इज़ राइट। स्पीड एट डी क्या होगा? स्पीड विल बी ग्रेटर देन दैट एट ई। Okay, moving to the next one. Okay, this one we'll do. Very simple again. Particle starts from origin and moves along x-axis such that the velocity at any instant is given by 4t cube minus 2t. What is the acceleration of the particle when it is 2 meters from the origin? क्या इसको नॉर्मली सिर्फ हम डिफरेंशिएट करेंगे? क्योंकि अगर इसको सिर्फ नॉर्मली डिफरेंशिएट करोगे तो हमें मिलेगा a इज इक्वल टू dv by dt करने से वी विल गेट 12 टी स्क्वायर माइनस 2। बट अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो वो टाइम तो पता होना चाहिए। सो हाउ विल वी फाइंड द टाइम? हमें क्या दिया है? पोजीशन दिया हुआ है दैट व्हेन द पार्टिकल इज एट 2 मीटर्स फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर्स दिया है। सो लेट अस टेक दिस इक्वेशन। नाउ वी विल फाइंड टी। अगर टी हमने निकाल लिया तो ये एक्सेलरेशन निकल जाएगा। So let us take this expression v is equal to 4t cube minus 2t। अब ये भी दिया हुआ है कि at origin the particle is at rest, है ना? at 2 मीटर पे हम देखते हैं कि उसको पहुंचने में कितना टाइम लगा। So let us change this relation in terms of x and t, क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन है that is for respective time and position। तो इसको हमने कर दिया dx by dt एंड दैट इज 4t क्यूब माइनस 2t। राइट, यहां से हम x निकालेंगे। सो dx विल बी 4t क्यूब माइनस 2t इंटू dt।
सो हियर वी विल इंटीग्रेट बोथ साइड्स और 0 टाइम पे पोजीशन क्या था? ओरिजिन पे। t टाइम पे पोजीशन क्या है? 2 मीटर्स, राइट? सो वी विल जस्ट इंटीग्रेट बोथ द साइड्स। तो लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा? x और रेंज 0 टू 2। राइट साइड में क्या मिलेगा? सबको सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे। 4 t टू पावर 4 बाय 4 फ्रॉम 0 टू t माइनस 2 t स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 टू t। सो इफ वी इवैल्यूएट, लिमिट्स को रखने पे मिलेगा x इज इक्वल टू 4 बाय 4 इंटू टी टू पावर 4 माइनस 2 टी स्क्वायर बाय 2। सो वी विल गेट x इज इक्वल टू टी टू पावर 4 माइनस टी स्क्वायर। अच्छा, ये x क्या है? x की जगह भी तो लिमिट पुट करेंगे लेफ्ट साइड में। वो मिलेगा हमें 2 माइनस 0 दैट इज 2। यहां तक समझ में आया? अब क्या इसको सॉल्व करके हम t निकाल सकते हैं? यस, लेट अस सॉल्व इट। सो इस इक्वेशन को अगर देखें तो ये क्वाड्रेटिक में चेंज हो सकती है। लेट अस टेक टी स्क्वायर एज m एंड लेट्स पुट हियर। तो ये क्या बन जाएगा? 2 इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस m। सो दैट विल बी m स्क्वायर माइनस m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करके m की वैल्यूज निकालते हैं। सो लेट अस अप्लाई माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो हमें मिलेगा 1 प्लस माइनस रूट 1 प्लस 8 बाय 2। सो m विल बी 1 प्लस माइनस 3 बाय 2। तो इसके दो वैल्यू निकलेंगे m के। एक तो निकलेगा 4 बाय 2 दैट इज 2 और एक निकलेगा माइनस 2 बाय 2 दैट इज माइनस 1। बट जो m है, m क्या है? टी स्क्वायर। तो ये m नेगेटिव नहीं हो सकता है बिकॉज इट इज स्क्वायर ऑफ अ क्वांटिटी। सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो t हमें मिला प्लस माइनस रूट 2 और टाइम कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो टाइम होगा रूट 2 सेकेंड्स। दिस इज क्लियर टू एवरीवन? अब रूट 2 सेकेंड्स अगर हमें टाइम मिल गया तो व्हाट वी विल डू, we'll just put it here and we will get the acceleration। एक्सीलरेशन क्या था? 12 टी स्क्वायर माइनस 2 और टाइम कितना मिला हमें? रूट 2 सेकेंड्स। so let's put it here, रूट 2 whole square minus 2, so that is 24 minus 2 and that is 22 meter per second square। very good Snigdha, exactly it is 22 meter per second square। understood this one, all of you? Okay, then we will do another question. Today we are just going to solve the questions. So last question, then we will open Kahoot. Okay, this one quickly we'll do. It's a very short question.
3.6 meter per second. Let us see. Body moves along a straight line with an acceleration of 3 meter per second square for 2 seconds. है ना, acceleration 3 है, time क्या है 2 seconds, and then with an acceleration of 4 meter per second square for t is equal to 3 seconds. You have to find the average acceleration of the body. So if we look at it using the graph, let us suppose ये velocity time graph है, तो इस velocity time graph का ये slope acceleration देगा. So 2 seconds तक इसकी acceleration 3 हुई, and then for next 3 seconds its acceleration is 4 meter per second square, वो भी पॉजिटिव है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा हो गया. So this is 5 and this is 4 meter per second square. So how will we figure out the average acceleration? Okay, everyone will find out. One answer I can see 3.6 meters per second square. Yes, Sampada, we will see. Just last minute, everyone will attempt this. Three 3.6 meters per second square, that is correct one. But how will we do? Everyone should attempt this one. Very simple. Average acceleration क्या होता है? Change in velocity by change in time या total time taken, है ना? So what is the change in velocity? पहले अगर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है तो उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है फाइनली? 6 मीटर पर सेकेंड, राइट? ये 6 हो रहा है. अब क्या है? ये इसका इनिशियल वेलोसिटी बन गया और उसका एक्सीलरेशन क्या है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो यहाँ पर भी हम लगाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स यू प्लस ए टी. सो यू कितना है? 6, ए कितना है अब? 4 और टाइम है नाउ 3. सो वी गेट 18 मीटर पर सेकेंड, है ना? मतलब फाइनली उसकी जो वेलोसिटी हो गई वो हो गई 18 मीटर पर सेकेंड. तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ? फाइनल माइनस इनिशियल, और चेंज इन टाइम हो गया